Hello friends, today we will start with Science 1 का first lesson gravitation. So total there are 7 subtopics: gravitation, circular motion and centripetal force, then Kepler's laws, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to the gravitational force of the earth, free fall and escape velocity. So total 7 subtopics are there. So for this first lesson I will create 3 videos. In two videos I will explain the theory and one separate video will be done for the प्रॉब्लम्स. ओके, डेरिवेशंस एंड प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और हाफ ऑफ द लेसन विल बी कवर्ड इन दिस फर्स्ट वीडियो, देन सेकंड हाफ पार्ट विल बी कवर्ड इन अनदर वीडियो एंड थर्ड वीडियो फॉर द योर प्रॉब्लम्स. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक. सो ये जो सब 4 सब पॉइंट्स आर देयर, सो आई विल कवर इट इन दिस वीडियो. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ. Can you recall what are the effects of a force acting on an object? So किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, so what are its effects? So what are the effects? It will start moving or stop moving. Okay, then it will change its direction or it will change its speed, velocity. So there are many more effects, but these are the basic things. Okay, what? To start or stop moving object and to change its speed or direction. Then second is, what types of forces are you familiar with? So we are familiar with many forces like gravitational force. Okay, we are explaining it in this lesson only. After that, weak force, electromagnetic force, nuclear force, etc. Then third one, what do you know about the gravitational force? So it is given in next line only. See, we have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force. ये क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है. And it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. तो it acts not only between two objects on the earth. ये सिर्फ अर्थ पे ही एक्टिव है ऐसे नहीं है, बट ऑल्सो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके बीच भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ एक्टिंग. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वॉज डिस्कवर्ड. तो ये जो फोर्स है वो कैसे डिस्कवर हुआ. सो ग्रेविटेशन, एज वी हैव लर्न द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. तो ये किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. तो उसने कैसे डिस्कवर किया? दैट फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल. ओके, तो उन्होंने ये फोर्स कैसे डिस्कवर किया? तो जो एप्पल का पेड़ था तो वहाँ से जो एप्पल है वो ज़मीन पे गिरते हुए उन्होंने देखा. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. तो वाई इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये मतलब नीचे ही क्यों गिरते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते. टूवर्ड्स इटसेल्फ. एंड आफ्टर मच थॉट he became to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. तो उन्होंने बहुत कोशिश किया. ओके, और फिर उन्हें he thought मतलब कि उन्हें ऐसा लगा, he came to the conclusion, उन्होंने ऐसे कंक्लूड किया that the earth must be attracting the apple towards itself. तो ये जो अर्थ है तो ये एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है. एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये अर्थ के सेंटर की ओर है. द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus apple falls vertically downwards. तो क्या है? The direction of apple on the tree to the center of the earth is vertical. okay, तो मतलब कि जो एप्पल है तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ की सेंटर की ओर जाती है. दैट मीन्स इट इज़ अ वर्टिकल. ओके, सो दैट्स वाई दैट एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इसीलिए ये जो एप्पल है वो नीचे गिरता है.
सो फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ. तो ये एप्पल ट्री है, अर्थ के ऊपर है. So the force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. तो क्या है the force on an apple on the tree? जो एप्पल के ऊपर जो फोर्स होता है इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है, अर्थ की सेंटर की ओर. दैट इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल. परपेंडिकुलर मतलब क्या कि इट क्रिएट्स एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये एप्पल जहाँ पे गिरता है तो वहाँ से सरफेस ऑफ द अर्थ को 90 डिग्री का एंगल होता है, वो परपेंडिकुलर होता है. द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून. तो ये जो फिगर है उसमें और क्या दिख रहा है कि अर्थ का और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स. द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल. तो स्केल के हिसाब से ये जो इसकी साइज है वो स्केल अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है. Newton thought that if the force of gravitation acts on an apple on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights much farther away from the earth, like for example moon. तो अभी न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एप्पल जैसे छोटी चीज़ पे हो रहा है तो वो कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट. तो और भी जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि अर्थ से बहुत दूर होंगे, फार्दर अवे मीन्स बहुत दूर होंगे, तो क्या उन पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है क्या. फॉर एग्जाम्पल द मून, जैसे कि मून पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है क्या. ओके, so can it act on even farther objects like the other planets and the sun. और उसके भी ऊपर उससे भी लंबा सन जैसे ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स, सन जैसे स्टार पे या फिर अदर प्लैनेट्स पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है क्या. सो फोर्स एंड मोशन. We have seen that a force is necessary to change the speed as well as direction of the motion of an object. तो फोर्स इज़ नेसेसरी. ओके, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या फिर स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. सो कैन यू रिकॉल व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैड स्टडीड अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो फर्स्ट लॉ इज़ अबाउट द inertia, then second law is about momentum, and third law every one of us knows that what every action has equal and opposite reaction. This is your third law. Okay, so total 3 laws are there. First law is about inertia, second law is about momentum, and third is about every action has equal and opposite reaction. So next is introduction to scientist. Great scientist Sir Isaac Newton was one of the greatest scientists of recent times. Okay, तो ये one of the greatest scientist है. He was born in 1642 and died in 1727. Okay, so he was born in England. वो इंग्लैंड के थे. He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia. तो उन्होंने क्या किया, उनके जो laws of motion हैं, ओके, देन उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड थियोरी ऑफ ग्रेविटी, तो ये सब उन्होंने किस में लिखा, प्रिंसिपिया. इट वॉज रिटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया. सो बिफोर दिस बुक वॉज रिटन केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशंस. तो ये बुक लिखने से पहले केपलर, ही वॉज अनदर साइंटिस्ट, तो उसने क्या किया था, he had given 3 laws describing planetary motions. तो planetary motion मतलब planet की motion के बारे में उन्होंने 3 laws दिए थे केपलर ने. So however the reason why planets move in the way described by Kepler's law was not known. केपलर्स ने laws तो दिए लेकिन वो planets उसी motion में और उसी orbit में क्यों और कैसे घूमते हैं, तो इसका reason तो पता नहीं था. Newton with his theory of gravity mathematically derived Kepler's laws. तो जो न्यूटन का जो थियोरी ऑफ ग्रेविटी है तो उसने हेल्प किया
केप्लर्स के लॉज को और समझने में या उसका रीज़न ढूंढने में. सो न्यूटन विथ हिज थियोरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केप्लर्स लॉज. तो मतलब क्या कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ थियोरी ऑफ ग्रेविटी है तो उसने मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया. मतलब न्यूटन ने मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए कि केप्लर्स लॉज जो है वो ऐसा ही क्यों बता रहा है. In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas, including light, heat, sound and mathematics. तो न्यूटन ने और किस किस में काम किया? लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स. तो इन सब सब्जेक्ट्स में भी न्यूटन ने काम किया है. He invented a new branch of mathematics. This is called calculus and has wide-ranging applications in physics and mathematics. तो न्यूटन ने मैथ्स में भी एक और ब्रांच का इन्वेंशन किया, कैलकुलस. कैलकुलस में डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आता है और ये आपको हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 11th-12th में अगर आपने साइंस लिया तो मैथ्स में आपको ये कैलकुलस आएगा ही आएगा. ओके, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So he was the first scientist to construct a reflecting telescope. Reflecting telescope, it is used to see the planetary motions. Okay, planets को देखने के लिए जो होता है यूज़ होता है reflecting telescope. तो उसका कंस्ट्रक्शन भी न्यूटन ने ही किया था. So next is circular motion and centripetal force. Try this. Tie a stone to one end of the string. Take the other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in figure 1.2a. तो क्या करना है, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के एक साइड को एक एंड को एक स्टोन कनेक्ट करना है, टाई करना है और फिर उसे रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में. आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन. तो क्या आप स्टोन पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या? इन विच डायरेक्शन इज़ दिस फोर्स एक्टिंग. तो ये जो फोर्स हो रहा है वो एक्ट हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है. देन हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन. अगर ये आपको रोकना है तो कैसे रोकोगे. एंड इस व्हाट विल बी द इफेक्ट. अगर आपने ये जो मोशन है उसे स्टॉप किया सो व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन द स्टोन. As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is towards the center of the circle, and are applying a force towards it. तो जब हम ये string hold कर रहे हैं, okay, we are pulling the stone towards us, that is towards the center of the circle. तो ये जो हम stone घुमा रहे हैं और उस पर जो force apply हो रहा है, तो ये force कहाँ पे apply हो रहा है कि जो stone है वो circle के center में, मतलब कि हमारे हाथ में आ जाए. ओके, सो द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग. अगर हमने स्ट्रिंग को रिलीज़ कर दिया तो ये जो फोर्स है इट विल स्टॉप एक्टिंग. ये जो फोर्स है वो मतलब एक्ट होना स्टॉप हो जाएगा. सो द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, because that is the direction of its velocity at that instant of time. तो क्या दिया है कि इस केस में the stone will fly off along a straight line. एक straight line में वो जाएगा which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. मतलब कि जब हम string release करेंगे तो उस वक्त उस position पे जो stone वहाँ पे जैसे होगा तो उस point से वो tangentially वहाँ से दूर जाएगा. ओके, टेंजेंशियली. टेंजेंट मतलब क्या, सर्कल में आपने देखा होगा कि एक बाहर की ऐसी लाइन, द स्ट्रेट लाइन दैट टचेस टू द सर्कल एट वन सिंगल पॉइंट. ओके, इट इज़ आउटसाइड द सर्कल सो इट इज़ कॉल्ड एज टेंजेंट. तो ये स्ट्रिंग अगर हम जैसे जहाँ पे छोड़ देंगे तो उस पॉइंट से टेंजेंशियल वो स्टोन जाएगा. ओके, हाँ. So you may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc. तो इससे पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जो 5 रुपी कॉइन है सो इट वॉज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क. एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर रखा था एंड द डिस्क वॉज मूविंग. ओके, सो व्हेन द डिस्क स्टॉप्स at that time that coin it will go towards the center of the circle. okay, तो मतलब ये भी tangential जाएगा.
सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स. इसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल मीन्स सेंटर सीकिंग, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या कि एक जो कुछ भी सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल की सेंटर की ओर मतलब उससे जाना चाहता है तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. You know that the moon, which is the natural satellite of the earth, goes round it in a definite orbit. तो ये जो मून है जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है तो ये भी अर्थ की ओर एक ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. तो ये मून की डायरेक्शन और स्पीड जो है वो हर वक्त चेंज होती रहती है. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून. तो आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक दैट सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून. कुछ एखादा फोर्स जो है वो मून के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है, ऐसा लगता है कि आपको. What must be the direction of this force? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. How would its motion have been if no such force acted on it? तो अगर उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता तो उसकी मोशन कैसे होती. Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? तो सोलर सिस्टम के बाकी के प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड ऐसे ही घूमते हैं क्या. Each similar force acting on them, उनके ऊपर भी सेम फोर्स ही एक्ट होता है क्या. Then what must be its direction? उसकी डायरेक्शन क्या होगी. ओके तो ये सारे सवाल है. These are the questions and we will find the answers in this lesson only. So from the above activity, example and questions, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. तो ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया अभी तो उसके ऊपर से हम क्या बता सकते हैं कि there must be a force which is exerted on the moon. ओके तो अर्थ मून के ऊपर कुछ तो फोर्स एक्सर्ट कर रही है. And this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. तो ये जो अर्थ मून के ऊपर जो कुछ भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उस फोर्स से अर्थ मून को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ओके सो सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो सेम उसी तरह जैसे कि अर्थ मून पे अट्रैक्शन कर रही है तो सेम उसी तरह सन भी उसके बाकी के प्लैनेट्स को खुद की ओर खींच रहा है, खुद की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को भी. क्लियर. ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ केपलर्स लॉज. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. So planetary motion जो है वो astronomers की ओर से बहुत पुराने ज़माने से वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. Before Galileo, all observations of the planets' positions were made with naked eyes. तो गैलीलियो से पहले जो कोई भी साइंटिस्ट थे तो वो ये सब ऑब्जर्वेशन जो थे प्लैनेट्स का तो वो नेकेड आइज से करते थे. मतलब कि तब तक वो लोग टेलीस्कोप यूज़ नहीं करते थे, तब तक टेलीस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था. बाय द 16th century, a lot of data were available about the planetary position and motion. तो 16th century तक बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल था प्लानिटरी पोजीशन एंड मोशन के बारे में. मतलब प्लैनेट्स की कैसी पोजीशन थी और कैसी मोशन थी तो उसके बारे में बहुत सारा डेटा अवेलेबल था. Johannes Kepler studied this data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. तो जोहान्स केपलर ही वॉज वन साइंटिस्ट और उसने ये डेटा स्टडी किया और उसने क्या बोला कि द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टन लॉज. तो ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट होता है तो वो सर्टन लॉज जो है वो फॉलो करती है. ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशंस. तो प्लानिटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 3 लॉज दिए थे. दीज आर नोन एज केपलर्स लॉज विच आर गिवन बिलो. तो ये केपलर्स लॉज हम नीचे देखेंगे. Now do you know an ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. तो
एलिप्स होता है. ओके, तो इट इज़ वन ज्योमेट्रिकल फिगर. सो इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द कोन इज कट इन इंक्लाइंड प्लेन. ओके, मतलब कि अभी देखो फिगर में जो दिया है कि ये देखो ऊपर जो है वो स्ट्रेट कट है और ये नीचे वाला जो है वो इंक्लाइंड कट है, तो तभी हमें ऐसे एलिप्स मिलता है. ओके, सो इट हैज़ टू फोकल पॉइंट्स. तो एलिप्स के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं. द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट. तो क्या दिया है, जैसे कि अभी देखो सपोज वी विल टेक पॉइंट ए, तो AF1 प्लस AF2. ओके, ये हुई ए की दोनों फोकल पॉइंट से लेंथ की एडिशन. और अभी देखो ये सेकंड पॉइंट, तो BF1 एंड BF2. तो AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2. ये उसका मीनिंग हुआ. एलिप्स के ऊपर जो कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का दोनों फोकल पॉइंट्स तक की लेंथ और उन लेंथ की एडिशन, तो ये हर एक पॉइंट के लिए सेम होती है. So I will say that AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. Okay, तो क्या दिया, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट. F1 and F2 are two focal points of the ellipse shown in the figure. If points A, B and C are 3 points on the ellipse, then देखो यहाँ पे भी दिया है AF1 plus AF2, BF1 plus BF2 and CF1 plus CF2. Now we will go with Kepler's first law. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. So it is focus का full plural form है ये foci. It is foci or foci. So the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. So figure 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. तो क्या दिया, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन फोसाई. सो किसी भी प्लैनेट, अभी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर. तो हर एक प्लैनेट के लिए प्लैनेट की जो ऑर्बिट होगी वो एलिप्टिकल ही होगी. और सन कौन सी पोजीशन में होगा, तो किसी भी एक फोकस पे सन की पोजीशन होगी. Figure 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. Okay, so S is sun and A is given your planet. Okay, A is planet और B C D E F. तो ये पॉइंट्स हम आगे देखेंगे कि ये क्या है. अभी Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तो क्या दिया है, the line joining the planet. ओके, मतलब कि क्या, ए और एस. सो प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया. स्वीप मतलब कि कवर करता है, तो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो अभी देखो ए से बी जाने के लिए जितना भी समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, ए से बी जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा सी टू डी जाने के लिए, और उतना ही टाइम लगेगा ई टू एफ जाने के लिए. अभी आप बोलोगे कि ए बी का डिस्टेंस ज़्यादा है, सी डी का कम है और ई एफ का तो और कम है. लेकिन अभी देखो सन की जो पोजीशन है वहाँ से, तो ए टू बी सन वहाँ पे नियरर है. ओके, सो दैट्स वाई द स्पीड ऑफ प्लैनेट ए विल बी मच मोर देयर. ओके, एज कंपेयर टू सी डी और ई एफ. ओके, सो ए बी में जो प्लैनेट की स्पीड होगी तो वो ज़्यादा होगी, सी डी में थोड़ा सा ए बी से थोड़ी कम होगी. ओके, वाई, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ सन इज समवॉट मोर ओके दैन ए बी. सो दैट्स वाई सी डी में वहाँ भी जो स्पीड होगी प्लैनेट की तो वो कम हो जाएगी, इसीलिए उतना एरिया भी उतने ही टाइम में कवर करेगा. और ई एफ में देखो इट इज़ द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, सो दैट्स वाई वो एरिया थोड़ा छोटा दिख रहा है, बिकॉज इट्स स्पीड इज समवॉट स्मॉल दैन ए बी. तो अभी दिस Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas. Okay, so AB is equal to CD is equal to EF. Those areas are equal.
AB and CD are distances covered by the planet in equal time, that is after equal interval of time. The position of planets starting from A and C are shown by B and D. ओके तो सेम यहाँ पे गया, इट इज़ गिवन दैट ए बी और सी डी, तो वहाँ पे सेम टाइम इंटरवल होगा. द स्ट्रेट लाइन्स ए एस एंड सी एस, ए एस मीन्स दिस वन ए एस and CS. Okay, so AS and CS sweep equal area in equal interval of time, that is area ASB and CSD are equal. ASB, this one ASB and CSD. Okay, so these area are equal. तो यहाँ पे हमने सेकंड लॉ कवर किया है. अभी केप्लर्स थर्ड लॉ. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. तो क्या दिया, square of its period of revolution around the sun. So sun के around revolution के लिए जितना भी टाइम लगेगा पीरियड, तो उसका स्क्वेयर is directly proportional. Directly proportional means what? If one thing is increased then another thing also increases, उसे बोलते हैं directly proportional. तो is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. तो क्या दिया है कि सन के मीन्स जस्ट टेक एनी एग्जाम्पल, जस्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ. तो अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, 365 डेज. सो square of that 365 days. So 365 days is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. तो अर्थ का सन तक का डिस्टेंस तो इसका क्यूब होगा. सो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज टी स्क्वेयर. देखो अभी आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की राइट हैंड साइड में है, तो अभी वो लेफ्ट में आएगा तो इट विल बिकम एट द डिवीजन. ओके, ये डिवाइड में आएगा. सो टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के. So this is your first equation. Now Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of planets obtained by regular observations. तो केपलर ने क्या किया कि ये लॉज दिए हैं by simply study the position of planets. ओके, तो प्लैनेट्स की पोजीशन चेक करके और उसने ये सभी जो लॉज है वो दिए हैं. So he had no explanation as to why planets obey these laws. तो ये प्लैनेट्स जो है ये यही लॉ क्यों ओबे करते हैं, ये उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था. सो वी विल सी बिलो हाउ दिस लॉज हेल्प न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन. तो इन लॉज ने न्यूटन को उसकी फॉर्मुलेशन मतलब कि थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला डिराइव करने में कैसे मदद की, ये हम आगे देखेंगे. So next is use your brain power. If the area ESF in figure 1.4 is equal to area ASB, what will you infer about EF? तो EF के बारे में क्या कंक्लूजन होगा कि time required will be same. Time required to cover the distance AB will be same as the time required to distance the cover EF. So next, Newton's universal law of gravitation. All the above considerations including Kepler's laws led Newton to formulate his theory of universal gravity. तो केपलर के लॉज जो थे तो उनकी वजह से न्यूटन को अपनी यूनिवर्सल ग्रेविटी का लॉ जो है तो उसे फॉर्मुलेट करना, उसे फॉर्मूला में डालना उसे ईजी हुआ. So according to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटी की थियोरी क्या बोलती है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स. तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट खुद की ओर अट्रैक्ट करता है एक डेफिनेट फोर्स के साथ. So this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो directly proportional किसके साथ है, उन दोनों प्रोडक्ट के मास के साथ. ओके, जो दोनों बॉडीज़ है तो उनके मास का प्रोडक्ट एंड उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनका जो डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर तो उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। An introduction to scientist Johannes Kepler 1571 to 1630 was a German astronomer and mathematician। ये जर्मनी से थे, एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। So he started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600। तो उन्होंने प्राग, ओके, प्राग इज़ अ कंट्री, सो the Tycho Brahe, he was also a famous astronomer, so he was started working as a helper of Tycho Brahe, okay, in 1600। After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place, okay। so 1601 में जो टाइको ब्राहे हैं तो उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद ये केपलर, ओके, तो केपलर को रॉयल मैथमेटिशियन, ओके, इनकी प्लेस पे उनका मतलब अपॉइंटमेंट मिला। केपलर यूज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लानिटरी मोशंस मेड बाय ब्राहे टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो ये जो ब्राहे थे तो वो जो कुछ भी प्लानिटरी मोशन की पोजीशन की स्टडी करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, तो वही ऑब्जर्वेशन जो केपलर है तो उन्होंने भी कंटिन्यू किया, ओके। और उसके साथ उन्होंने ये प्लानिटरी मोशन के लॉज है तो उन्हें डिस्कवर किया। ही रोट सेवरल बुक्स, तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। हिज वर्क वॉज लेटर यूज्ड बाय न्यूटन इन पोस्टुलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसके बाद न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए तो उसके मतलब उसमें हेल्प भी की इन जोहान्स केपलर ने। Figure 1.5 shows two objects with masses m1 and m2 kept at a distance d from each other. So ये दो objects are there whose mass m1 and m2, okay, and they are kept at a distance of d. So mathematically the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as, तो उनके बीच में जो कुछ भी gravitational force होगा तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, F is A. A means it is directly proportional sign, okay, it's not A. So F is directly proportional to m1 m2 product of their masses, okay, and inversely proportional to the square of distance between them। अभी उनका distance क्या है, D, तो उसका square it will be D square। So अब हम क्या करेंगे, we will remove the directly proportional sign and insert there a constant, okay, constant term। So F is equal to capital G m1 m2 d upon d square, okay। So here G is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant। तो G क्या है, constant of proportionality and उसे हम बोलते हैं universal gravitational constant। The above law means that if the mass of one object is doubled, the force between the two objects also doubles, okay। अगर एक भी सब्जेक्ट का मास हमने डबल किया तो उसमें जो उनके बीच जो फोर्स है तो वो भी डबल हो जाएगा। ऑल्सो इफ़ द डिस्टेंस इज़ डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ऐसे क्यों, डिस्टेंस इज़ डबल्ड, ओके, मीन्स 2D अगर हमने लिखा तो यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन इट इज़ d स्क्वायर, सो इट विल बी 2D स्क्वायर, सो इट विल बी 4D स्क्वायर, ओके। सो इफ डिस्टेंस इज़ डबल्ड the value of F, value of force, it will be decreased by 4, okay, 4 times वो decrease होगा। If the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the centers of the two bodies and the distance between the centers is taken to be D। अभी क्या दिया, if two bodies are spherical, अगर वो spherical है shape में, the direction of the force is always along the line joining the centers of the two bodies, okay। तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो दोनों बॉडीज़ के जो सेंटर होगा तो उसे कनेक्ट करने वाली लाइन, जैसे कि अभी यहाँ पे जो D दिया है तो D की जो ये दी है लेंथ दी है जो एरो है तो वो होगा उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, वो होगा उसका डिस्टेंस।
So in case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along the line joining their center of mass, and d is taken to be the distance between the two centers of mass. अगर ये कंडीशन जो ऊपर दी थी वो थी अबाउट द स्फेरिकल बॉडीज़, और अगर ये शेप है उनका वो स्फेरिकल नहीं होगा तो क्या होगा, तो अभी जो हमने वर्ड सेंटर यूज़ किया था तो उसके बजाय हमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। ओके मतलब कि पूरा मास कौन सी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो वहाँ से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। So from equation 2 it can be seen that the value of g is the gravitational force acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other. So equation 2 से हम क्या elaborate कर सकते हैं, the value of g acting between two unit masses. Okay, two unit masses, एक specific unit mass लिया है हमने, kept at a distance away from each other. Thus in SI unit the value of g is equal to gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. तो हमने वहाँ इसका क्या लिया है, SI यूनिट्स लिए हैं. ओके, SI मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. सो SI यूनिट्स लिए हैं. M1 M2 मीन्स मास इट इज़ कैलकुलेटेड और इट इज़ मेजर्ड इन केजीज, किलोग्राम्स. ओके, देन उसके बाद D का SI यूनिट है मीटर्स. ओके, सो दैट्स वाई the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. Now next, use your brain power. Show that in SI units the unit of g is Newton meter square per kg square. The value of g was first experimentally measured by Henry Cavendish. Okay, he was a scientist और उन्होंने सबसे पहले g की वैल्यू कैलकुलेट की थी. In SI units, its value is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. kg raised to minus 2 तो उसे बोलते हैं per kg square. Okay, it is in division. So Newton meter square per kg square. So you have to remember this value of g, 6.673 into 10 raised to minus 11. So जब एग्ज़ाम में ये आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस वक्त ये जी की वैल्यू जो है तो एक तो ये दी होती है, इट इज़ गिवन इन दी वर्ड प्रॉब्लम ओनली, और एल्स यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, कभी दी भी होगी और कभी नहीं भी दी होगी. सो उससे बेटर है दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू. Okay, now next is the center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, कि कोई भी इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट जिसका कि जो कि पूरा मास जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड किया होता है तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. तो किसी भी spherical object का center of mass जो जिसकी कि uniform density होगी तो वो उसके geometrical center में ही होगा. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. सेंट्रॉइड मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट्स जस्ट लाइक योर ज्योमेट्रिकल सेंटर ओनली. तो किसी भी इरेगुलर शेप का जो ये होगा ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें सेंट्रॉइड में उसका सेंटर ऑफ मास होगा. Now why did Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law in this as shown below. तो न्यूटन ने अपने इस फॉर्मूला में स्क्वायर ही क्यों लिया है, इन्वर्स स्क्वायर ही क्यों लिया है, मीन्स डी स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिया है, तो ये एक्सप्लेन किया केपलर के थर्ड लॉ ने. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. Consider an object moving in a circle with constant speed. We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. तो अभी क्या करना है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्क्यूलर कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड में जो एक सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो तो उसे कंसिडर करना है. We have seen earlier that such a motion is possible only when, अभी ये मोशन सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब
when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. तो when the object, okay, जो object है, जो घूम रहा है, तो वो हर वक्त एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जब हम सेंटर से उस फोर्स को अप्लाई करेंगे, ओके, तो तभी ये जो है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड में होगा, कांस्टेंट मोशन में होगा. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स. तो ये जो हम सेंटर से जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. If m is the mass of the object, v is its speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to F is equal to mv square upon r. तो अभी क्या है, गिवन ऑब्जेक्ट का मास अगर हमने m कंसिडर किया, v is its speed and r is the radius, then it can be shown that F is equal to mv square upon r. ये हम शो कर सकते हैं. If the planet is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equal to mv square upon r. अभी क्या दिया है, if a planet is revolving around the sun in a circular uniform circular motion, कोई भी planet sun के अराउंड एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, देन द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, ओके, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो वो होगा F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट. ओके, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थ. अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है, ओके, रिवॉल्यूशन हो रहा है, सो एट दैट टाइम जो सेंट्रीपेटल फोर्स अर्थ का होगा, ओके, तो इट विल बी mv स्क्वेयर अपॉन r, वेयर m क्या होगा अभी यहाँ पे, अर्थ का मास, देन v विल बी वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्लियर, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट मीन्स हमारे अर्थ का मास, v इज द स्पीड एंड r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सो r विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ का सन के यहाँ से डिस्टेंस. So the speed of the planet can be expressed in terms of the period of revolution t as follows. तो स्पीड जो है प्लैनेट की वो हम t के मतलब इन टर्म्स ऑफ t कैसे लिख सकते हैं. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट 2 पाई r. अभी पेरीमीटर ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है 2 पाई r, ओके, और उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा, सो इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट 2 पाई r. r is the distance of the planet from the sun. planet का sun के यहाँ से जो distance होगा, so it will be r. then time taken is equal to period of revolution is equal to t. so v is equal to distance travelled upon time taken. ये है हमारा formula. velocity या speed is equal to distance upon time. so distance is what, 2 pi r, perimeter of circle, and t, time taken is t, means here it's revolution time. नाउ F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r. ये हमारा गिवन फार्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स का. सो m और v की वैल्यू मुझे यहाँ पे मेरे पास है 2 पाई r, ओके, 2 पाई r अपॉन t. सो दैट्स वाई आई विल पुट दैट v वैल्यू इन दिस mv स्क्वेयर अपॉन r फार्मूला. सो इट विल बी m 2 पाई r अपॉन t ब्रैकेट स्क्वेयर, ओके, एंड अपॉन r एज इट इज़. सो m विल बी एज इट इज़ और 2 पाई r अपॉन t ब्रैकेट स्क्वेयर का हमने यहाँ पे ये लिया है. सो 4m पाई स्क्वेयर r अपॉन t स्क्वेयर. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वेयर वी गेट f इज इक्वल टू, दोनों को r स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया है. सो 4m पाई स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर, ओके, और r क्यूब अपॉन t स्क्वेयर ये अलग से कॉमन निकाला है. सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, हमने अभी पीछे देखा कि t स्क्वेयर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k, ओके. सो दैट्स वाई ये r स्क्वेयर अपॉन टी क्यूब को हम 1 अपॉन k लिख सकते हैं. सो दैट्स वाई f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर k. बट 4m पाई स्क्वेयर अपॉन k इज़ कॉन्स्टेंट. अभी देखो 4 ये तो कॉन्स्टेंट टर्म ही है. m इट इज़ द मास ऑफ प्लैनेट विच इज़ कॉन्स्टेंट. पाई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट ही है और k itself is a constant, okay. so that's why all these things are constant. so that's why f is equal to constant into 1 upon r square. अभी हम अब तक क्या करते थे, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो उसे हम निकाल के और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म अप्लाई करते थे, पुट करते थे. तो अब हम इसे अपोजिट करेंगे
कि अभी इक्वल टू और कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे निकाल कर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रख सकते हैं. सो एफ इज़ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. सो ये फॉर्मूला जो है, डेरिवेशन जो है, ये अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा. तो मैंने जैसे पहले कहा कि मैं जो थर्ड वीडियो करूँगी सिर्फ डेरिवेशन और प्रॉब्लम्स में, तो मैं इसे मैन्युअली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, सो दैट इट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड. So thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. तो इसीलिए न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ओके एक्टिंग ऑन द प्लानट के ऊपर जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्यूलर मोशन, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सर्क्यूलर मोशन के लिए. And it is must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Means what कि जो कुछ भी planets that are nearer to sun, okay, तो वहाँ पे जो centripetal force होगा it will be high, okay, distance कम है तो it will be high. And after that जो दूर दूर है planet, the planets those are farther distance, at farther distance, so at that time the centripetal force will be low, okay, it will be minimum. So thus so Newton identified this force with the gravity of Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. तो न्यूटन ने क्या किया, ये जो फोर्स है तो उससे और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उसने कंपेयर किया, ओके, और इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा कि ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. The gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बाकी फोर्सेस से बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड करता है. So this is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituents of the universe. ये possible है because of the huge masses of the planets. Planets का जो mass होता है वो बहुत ही ज़्यादा huge होता है, okay, planets का, stars का. So that's why it is important in the universe. So next is use your brain power. Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, why don't the two move towards each other? तो अभी क्या पूछा है, that gravitational force, okay, अब मतलब कि टेबल पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, या फिर तुम और तुम्हारा जो फ्रेंड है जो कि तुम्हारे साइड में बैठा है तो तुम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या. तो येस, देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ येस व्हाई डोंट द टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर. तो अभी हमने जो लास्ट लाइन देखी थी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मच वीकर, ओके, बट इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स. तो देखो अभी यूनिवर्स में जो अट्रैक्शन होता है प्लैनेट्स का एक दूसरे के बीच, तो इट व्हाई, बिकॉज इट हैज़ ह्यूज मास, ओके, सन हैज़ ह्यूज मास, earth has huge mass, moon has huge mass, okay, so that's why their gravitational force is more. But here as compared to those planets or stars, our masses are very much smaller, okay, so that's why we have that gravitational force, but it is very much weaker, okay, so that's why we can't attract anything towards us. Clear? So अभी मैंने जैसे बोला कि एग्जाम्पल्स है तो वो मैं थर्ड वीडियो में लूँगी. तो अभी नेक्स्ट, यूज़ योर ब्रेन पावर. Assuming the acceleration in example 2, okay, so again it is example, so we will take it in third video, in problems video, okay. So next is, do you know, you must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea, okay. तो सी में जो हाई टाइड और लो टाइड होता है तो वो हमें पता होता है. So the level of sea water at any given location along seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. तो ये जो सी लेवल, सी की वाटर लेवल होती है तो ये हमेशा इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है,
ओके, और ये ऐसा कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। हाई एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम में ये हाई टाइड और लो टाइड होता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। तो अभी ये जो वाटर लेवल होती है, ओके, सो ये चेंज क्यों होती है? तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसकी वजह से ये हाई टाइड और लो टाइड होता है। Water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of water there goes up, causing high tide at that place. तो water directly under the moon, okay, moon के नीचे जो water होता है, it gets pulled towards the moon, वो moon की ओर खींचा जाता है, and the level of water there goes up, causing high tide, और इसी वजह से वहाँ पे high tide होती है। At two places on the earth at 90 degree from the place of high tide, the level of water is minimum and low tide occurs there as shown in 1.6. तो at two places on the earth at 90 degree, ओके, 90 डिग्री पे उस जगह से 90 डिग्री पे उस वक्त क्या होता है? तो लो टाइड होता है। अभी देखो ये जो एलिप्टिकल फिगर है, ओके, तो ये जहाँ पे बाहर आया है जो एरिया अर्थ का, तो वहाँ पे अभी हाई टाइड है, और मतलब कि देखो जैसे कि ईस्ट और वेस्ट में ईस्ट और वेस्ट में हाई टाइड है, ओके, और नॉर्थ और साउथ देखो तो वहाँ पे जो एलिप्स है वो थोड़ा सा सहमा गया है, तो वहाँ पे है हमारी लो टाइड, ओके। तो 90 डिग्रीज पे लो टाइड होगी, और ये जो स्ट्रेट है वहाँ पे होगी हाई टाइड। Okay, so now collect information about the high and low tides from geography books. Observe the timing of high and low tide at one place when you go for a picnic to be a beach. Take pictures and hold an exhibition. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जियोग्राफी की बुक में से निकालनी होगी, और अगर आप बीच पे जाते हो तो वहाँ का हाई टाइड और लो टाइड का टाइमिंग ऑब्जर्व करना है। So next is when the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time. तो जब हम स्टोन ऊपर फेंकते हैं, ओके, तो उसका जो स्पीड होगा तो वो सेम होगा या फिर इट विल रिड्यूस। हाउ विल इट चेंज, वो कैसे चेंज होगी। वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, तो हमेशा वो ऊपर ही क्यों नहीं जाता है। Why does it fall down after reaching a certain height, एक certain height तक पहुँचने के बाद वो फिर से नीचे क्यों आना शुरू होता है। What does its maximum height depend on, तो उसके maximum height कौन से चीज़ों पर डिपेंड होती है। The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force, तो ये जो अर्थ है तो वो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है because of the gravitational force. The center of mass of the earth is situated at its center. So जो center of mass होता है तो वो center की ओर situated होता है। So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. तो इसीलिए ये जो gravitational force होता है तो वो भी हमेशा center of the earth की ओर ही खींचा जाता है। So because of this force an object falls vertically downward on the अर्थ, तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होता है। सो सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम कोई भी स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी, तो यही फोर्स होता है जो कि यही मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जो कि उसे नीचे खींचता है, ओके, और दैट्स वाई इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल। अभी ये कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा उसे नीचे खींचता है। द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो आफ्टर अ वाइल, तो कोई कुछ समय के बाद वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। तो उसके बाद में जब उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो ज़ीरो होती है, तो उसके बाद में ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके ऊपर एक्ट होना शुरू कर देता है,
और फिर उसे वो वर्टिकली डाउनवर्ड खींचा चला आता है. So again next is examples. Again I will tell that it will be explained in third video. Now use your brain power. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. Thus if मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Then, why then does the apple fall down towards the earth, but the earth does not move towards the apple? Okay, तो अगर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है तो फिर एप्पल अर्थ की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? एप्पल अर्थ की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? अर्थ एप्पल की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? ऐसे पूछा है. तो वाई एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स. अर्थ का मास देखो और एप्पल का मास देखो. अर्थ मास इज मोर दैन एप्पल मास. ओके, सो दैट्स वाई एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ एंड नॉट अर्थ इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एप्पल. The gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. तो ये gravitational force है तो वो moon पे भी apply होता है and that's why moon revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellites orbiting the earth. तो सेम सिचुएशन होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए भी. तो द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. ओके, तो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट सभी के सभी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं. द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स इटसेल्फ, बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ. वाई? तो अभी ये जो मून या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं तो ये भी अर्थ के अराउंड घूमते हैं. ओके, रिवॉल्व होते हैं. लेकिन जैसे एप्पल फॉल होता है तो वैसे अर्थ फॉल नहीं वैसे ये सैटेलाइट्स फॉल नहीं होते अर्थ पे. वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स. बिकॉज देयर वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स. तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अर्थ के रिवॉल्यूशन में है. ओके, सो दैट्स वाई दे डोंट फॉल ऑन द अर्थ. इफ़ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ. ओके, तो उनके पास अगर ये वेलोसिटी नहीं होती तो ये गिर जाते. नाउ नेक्स्ट इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो एज आई टोल्ड बिफोर, आई विल टेक दिस रिमेनिंग लेसन इन सेकंड वीडियो. ओके, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया. अगले वीडियो में सेकंड हाफ लेसन कवर होगा और थर्ड वीडियो जो होगा तो उसमें हम लेंगे डेरिवेशंस एंड प्रॉब्लम्स. ओके, तो अगर इसमें कुछ डाउट होंगे आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना. और मैं कमेंट बॉक्स में मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो इसके कमेंट बॉक्स में मैं वो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी. ओके, थैंक यू.